This video includes numerical on depression in freezing point. So this is from chapter solutions, and as you know, depression in freezing point is a colligative properties, right? So the numerical are quite similar to numerical based on elevation in boiling point, which I solved in my previous video, and they are quite easy. They are quite formula based, but there are certain things which you keep to, which you should remember while solving these numerical. So let us understand them by solving the numerical one by one. So the first numerical is uh, okay. Before starting with the numerical, let us write the simple equation that is written for the depression in freezing point, right? So, and what is depression in freezing point? Let us have a revision of that also, right? So delta TF, depression in freezing point is written as delta TF, depression in freezing point, right? Now what is depression in freezing point? थोड़ा सा theoretical part समझ लेते हैं इसका. See, whenever a solute is added to a solvent, the freezing point of the solution decreases. I mean, pure solvent का जो freezing point है, for example, water freezes at 0 degree Celsius, and if you add some amount of salt or some amount of sugar in it, then the freezing point gets lowered. मतलब अब जो बर्फ बनेगी, जो वाटर आइस में चेंज होगा, वो 0 से लोअर टेम्परेचर पे होगा. सो दैट इज डिप्रेशन. कम हो रहा है फ्रीजिंग पॉइंट. मतलब अगर इनिशियल 0 था, तो नाउ सपोज कोई सोल्यूट ऐड करने पे it will become -2, -1 point something like this. So this is that the difference is known as depression in freezing point, right? So that means जो pure हमारा जो solvent है, उसका freezing point अगर this is solvent, so this is T naught is the freezing point of solvent. Freezing point of solvent, if suppose, right, and TS is the freezing point of solution, freezing point of, right, solution, then delta TF is what? इन दोनों में difference, that is T naught minus TS. Solution का freezing point हमेशा कम रहेगा than the pure solvent. This is known as depression in freezing point. Now इसके लिए एक equation है जिसको use करके हम numerical solve करते हैं, that is depression in freezing point is equal to Kf into small m, that is molality. Now what is Kf? Kf is known as मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट. जैसे हमारा पिछले न्यूमेरिकल में था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में मोलल एलिवेशन कांस्टेंट Km, यहाँ पे है हमारा सॉरी Kb, वहां पे था Kb मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, यहाँ पे है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, दैट इज Kf. And m in the similar way as in the previous numerical, m is the molality of the solution. ठीक है. सो इस इक्वेशन को यूज करके हम न्यूमेरिकल निकालेंगे, जैसे हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के निकाले थे कि मोलालिटी के थ्रू हमें मोलर मास सोल्यूट का या अमाउंट ऑफ सोल्यूट निकालना आया था, वो सब निकालेंगे, या फिर हमें सिंपली डेल्टा टीएफ निकालना होगा, या फिर हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालना होगा. हमें यहाँ पे टी नॉट पता होगा, के एफ पता होगा, एम पता होगा. सो इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल है जो हम सॉल्व करेंगे इन इस वीडियो में. So let us start with the first numerical. 9 gram of a non-volatile solute when dissolved in 100 gram of water causes lowering of freezing point by 0.93 Kelvin. मतलब हमें सोल्यूट का वेट दिया है, कितना है, कोई नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है जिसका 9 ग्राम लिया 100 ग्राम ऑफ वाटर में, हमें वेट और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट दिया है, दैट इज 100 ग्राम, राइट. एंड दे से दैट इट कॉजेज दी, जब उस सोल्यूट को पानी में डाला तो जो डिप्रेशन हुआ, मतलब जो डिक्रीज हुआ फ्रीजिंग पॉइंट में, दैट वाज 0.93 Kelvin. So delta TF is equal to 0.93. Calculate the molecular weight of the solute. Suppose let molecular weight of the solute be m. इसको हम मान लेते हैं कैपिटल M.
KF हमें गिवन है, हमें कहा है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट निकालिए, राइट, ये हमें गिवन है. सो अगेन सिमिलर इक्वेशन, दैट इज डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M. यहाँ पे डेल्टा TF है, KF है, तो हम M निकाल लेते हैं. डेल्टा TF कितना है 0.93, राइट, एंड KF कितना है हमारे पास, KF इज 1.86. नाउ मोलालिटी विल बी इक्वल टू, M will be equal to 0.9 upon 1.86. एंड मोलालिटी होती क्या इन जनरल, मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हो गए 9 अपॉन इसका मोलर मास जो हमने M माना है, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1000, राइट. सो दिस इज इक्वल टू 90 बाय M, राइट. सो यहां से ये दोनों इक्वल हो गई इक्वेशंस, मतलब मोलालिटी हमने ये निकाली थी. सो 0.96 अपॉन 1.86 इज इक्वल टू 90 अपॉन M. सो अपॉन सॉल्विंग M आ जाएगा आपका 180. जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 180. तो 180 U बिकॉज मॉलिक्यूलर वेट बोला है, तो एक मॉलिक्यूल का वेट दैट इज 180 U. तो हमारा जो नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है उसका मोलर मास आ गया 180 U. सो ये था आपका इजी सिंपल न्यूमेरिकल. नेक्स्ट करते हैं, देखिए इसमें क्या करना है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन, राइट. सो दैट मींस अगर TS में मान लूं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, हमें ये निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. और सॉल्यूशन किस चीज का है, solution contains 0.52 gram of glucose in 80.2 gram of water, right. So that means आपको सोल्यूट का वेट दिया है, वेट ऑफ सोल्यूट यानी कि ग्लूकोज इज गिवन दैट इज 0.52 ग्राम, एंड आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज वाटर गिवन है दैट इज इक्वल टू 80.2 ग्राम. निकालना क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन. आपको पता है वाटर हमारा इसमें सॉल्वेंट है, गिवन है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 0 डिग्री सेल्सियस. दैट मीन्स डेल्टा TF हो गया T0 माइनस TS, दैट इज 0 माइनस TS, राइट. डेल्टा TF ये हो गया. अब हमें और क्या लगता है, हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी. डेल्टा TF क्या है 0 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, दिस इज इक्वल टू KF कितना है 1.86. मोलालिटी क्या होगी, हमारा है ग्लूकोज 0.52 ग्राम ऑफ ग्लूकोज. सो इसके नंबर ऑफ मोल्स मतलब मोलर मास ऑफ ग्लूकोज क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 180. सो इसके नंबर ऑफ मोल्स हो गए, इसका अमाउंट कितना गिवन है 0.52 अपॉन 180. सो यहां से मोलालिटी हो गई 0.52 अपॉन 180 अपॉन 100 इंटू 1000, राइट. सो यहां से ये आपका हो जाएगा कैंसिल आउट, और ये आपका जो भी है कैंसिल आउट होके, सो ये हो जाएगा 0 माइनस TS इज इक्वल टू, जब आप कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 1.86 इंटू 0.036, एंड ये आएगा आपका 0.067. सो 0 माइनस TS, तो TS क्या हो गया माइनस 0.067 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज हमने यहाँ पे जो टेम्परेचर लिया है वाटर का वो सेल्सियस में लिया है. सो यहाँ से ये हो गया हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज यानी कि कम हो गया, दिख रहा है हमें सोल्यूट डालने से फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कम हो गया है, तो हमने वो निकाल लिया. सो ऐसे ही न्यूमेरिकल आएंगे आपके इसी पर्टिकुलर वे से ही, एक या कोई और चीज जो भी होगी अमंग द इक्वेशन में जो जो चीजें उनमें से कोई एक चीज आपको निकालनी होगी. नेक्स्ट इज वाटर इज यूज्ड इन कार रेडिएटर्स. ओके, इन विंटर सीजन इथाइलिन ग्लाइकोल इज एडेड टू वाटर सो दैट वाटर मे नॉट फ्रीज. तो बेसिकली कार के रेडिएटर्स में पानी यूज करते हैं कूल डाउन रखने के लिए उनको, तो सर्दियों में वो पानी 0 डिग्री सेल्सियस कोल्ड कंट्रीज में बहुत जल्दी अचीव हो जाता है. सो टू अवॉइड की जो कार है उसमें जो वाटर डाला है रेडिएटर्स में वो फ्रीज ना हो, उसके लिए एक सोल्यूट डालते हैं जिसको बोलते हैं, जो होता है इथाइलिन ग्लाइकोल. इथाइलिन ग्लाइकोल इज CH2OH, CH2OH. So this is what, this is ethylene glycol.
अब इन्होंने बोला कि एक सोल्यूट डाला है इथाइलिन ग्लाइकोल वाटर को, ताकि वो फ्रीज ना हो। क्यों, कैसे फ्रीज नहीं होगा? सोल्यूट डालने से, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने से फ्रीजिंग पॉइंट पानी का कम हो जाता है, तो वो अब लोअर टेम्परेचर पे फ्रीज होगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज नहीं होगा। Assuming ethylene glycol to be non-volatile, calculate the minimum amount of ethylene glycol that must be added to 6 kg of water to prevent it from freezing at minus 30 degrees Celsius. Kf for water is given 1.86. मतलब कहने का ये है, हमें ये बोल रहे हैं कि बताओ हम कितने अमाउंट में इथाइलिन ग्लाइकोल डालें वाटर के 6 kg में, ताकि उस सॉल्यूशन की फ्रीजिंग ना हो माइनस 30 डिग्री सेल्सियस। मतलब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? माइनस 30 डिग्री सेल्सियस पे वो फ्रीज ना हो। एंड वाटर का प्योर का कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। हमें क्या निकालना है? अमाउंट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। सो लेट अमाउंट ऑफ इथाइलिन glycol to be added is equal to W ग्राम। मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है वो आपको ऊपर मैंने फॉर्मूला स्ट्रक्चरल ये लिख दिया मैंने आपको फॉर्मूला, तो यहां से आप निकाल सकते हैं इसका मोलर मास, दैट इज इक्वल टू ये होता है 62 आएगा। ठीक है, तो इक्वेशन तो वही लगेगी हमारी, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। डेल्टा टी एफ का मतलब 0 यानी कि टी नॉट माइनस टी एस। के एफ कितना है? के एफ इज 1.86, राइट। अभी सॉल्यूशन का इसका कितना वेट है? 6 kg ना। मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलालिटी होती है 1 kg के लिए, ये है 6 kg। सो मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 6 kg। दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 10 रेज टू पावर 3 ग्राम, राइट। सो यहाँ से मोलालिटी क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, W बाई 62 इसका मोलर मास अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000, राइट। ये हो जाएगी आपकी मोलारिटी। यहां से W निकालना है बस। टी नॉट कितना है? 0, ये कितना है? -30। दिस इज इक्वल टू, ये कैंसल आउट हो गया, सो ये आ गया आपका 1.86 इंटू ये आ जाएगा W बाय 372, और ये हो गया हमारा 0. आई थिंक देर इज सम टाइपिंग एरर है इस न्यूमेरिकल में। मेरे को लगता है ये जो इसका हमें दिया है ना, ये -30 नहीं हो सकता, इतना कम नहीं हो सकता। ये है, दिस वैल्यू इज माइनस 0.30 डिग्री सेल्सियस। दिस इज नॉट -30। 0 से -30 पे ले जाना इज वेरी डिफिकल्ट। सो दिस इज, मतलब एक सोल्यूट डालने से इतना कम करना इज नॉट पॉसिबल। सो ये करेक्ट कर लीजिए, इट इज नॉट -30 डिग्री, इट इज -0.30 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ पे बेसिकली ये बन जाएगा हमारा 0 माइनस -0.30, तो ये हो जाएगा हमारा why is it not erasing by the way, I don't know। ये हो जाएगा OMG, what's happening, I don't know। 0 plus 0.30 is equal to 1.86 into W by 372। so this implies, just a second, ये हम कहाँ पहुंच गए? ये हम पहुंच गए स्टार्टिंग के न्यूमेरिकल पे। तो ये हो गया हमारा 0.30 इज इक्वल टू 1.86 इंटू W अपॉन 372। यहाँ से W आ जाएगा 372 इंटू 0.30 अपॉन 1.86, जो कि आएगा कैलकुलेट करके 60 ग्राम। ये आएगा, जस्ट अ सेकेंड में दोबारा से लिख देती हूँ। Why is not my eraser is not working? Okay,
OMG, तो पूरा ही रेज हो गया। सो ये हो गया हमारा 0.30, फिर से कर लेते हैं, इज इक्वल टू 1.6 इंटू डब्ल्यू अपॉन 372। यहाँ से ये डब्ल्यू आ जाएगा 0.30 इंटू 372 अपॉन 1.86, यानी ये आएगा हमारा 60 ग्राम अपॉन कैलकुलेशन। सो अमाउंट ऑफ सोल्यूट यानी कि अमाउंट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज 60 ग्राम टू बी एडेड इन 6 kg ऑफ वाटर, ताकि हमारा जो सोल्यूशन है वो -0.30 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज ना हो। चलिए नेक्स्ट करते हैं। टू aqueous solutions containing respectively 7.5 gram of urea and 42.7 gram substance X in 100 gram of water freeze at the same temperature. Calculate the molar mass of X. अभी ये क्या है कि दो solutions हैं, एक है हमारा 7.5 ग्राम ऑफ यूरिया, एक सोल्यूशन में किस पर डाला 7.5 ग्राम यूरिया, ये डाला हमने इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, राइट। एक दूसरा सोल्यूशन बनाया है जिसमें है 42.75 ग्राम ऑफ कोई सब्सटेंस एक्स है, इन ये भी है 100 ग्राम ऑफ वाटर एट सेम टेम्परेचर। दे फ्रीज एट द सेम टेम्परेचर, मतलब दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट सेम है। अब आप देखो, अगर दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट सेम है और हमारा जो सॉल्वेंट है वो वाटर है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दोनों का सेम होगा। कैसे, देखो, डेल्टा TF इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। अगेन इस केस में भी डेल्टा TF इज व्हाट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। ना फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ जो वाटर है वो है 0 डिग्री सेल्सियस, और इनका जो ये है फ्रीजिंग पॉइंट है दोनों का, ये भी सेम है। अगर ये TS सेम है दोनों के केस में, इन्होंने लिखा ना कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन सेम है, सो बेसिकली हमारा जो डेल्टा TF आ जाएगा वो क्या आएगा, वो आएगा -TS, जो भी इसकी वैल्यू होगी वो आएगा -TS, यानी कि ये सेम है, ठीक है। सो दैट मीन्स इफ फ्रीजिंग पॉइंट इज सेम, इफ फ्रीजिंग point is same, delta TF for both the solutions will be same, right? अब डेल्टा TF की इक्वेशन में हमें क्या चाहिए होता है, डेल्टा TF होता है हमारा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इनटू m। अब क्योंकि सॉल्वेंट दोनों में वाटर है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, हर एक सॉल्वेंट के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसकी। तो जो KF है, राइट, वो क्योंकि वाटर के लिए है, दोनों केसेस में वाटर ही सॉल्वेंट है, सो एंड ऑल्सो KF विल बी सेम, तभी हमें यहाँ पे KF की वैल्यू नहीं दी हुई है। KF विल बी सेम फॉर बोथ बिकॉज इट इज दी KF ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, राइट। तो यहां से हम दोनों का डेल्टा TF निकाल लेते हैं। 7, हमें क्या निकालना है, हमें इसका मोलर मास निकालना है। इसका मोलर मास हमें पता है, ये हमें दिया मॉलिक्यूलर वेट 60, हमें इसका मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास निकालना है, ठीक है। तो हम दोनों का डेल्टा TF निकाल लेते हैं, फिर इनको इक्वेट कर देंगे और वहां से हमारा क्या आ जाएगा, मोलर मास X का। कैसे, डेल्टा TF फॉर यूरिया क्या होगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF, जो पता नहीं मुझे वैल्यू, मैं ऐसे ही देख रही हूँ, KF इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, दैट इज 7.5 अपॉन 60 इसका मोलर मास है, अपॉन 100 इंटू 1000, ये अपॉन कैलकुलेशन आ जाएगा आपका, जो भी ये वैल्यू आएगी ये आएगी आपकी 1.25। दिस इज फॉर यूरिया। अब ऐसे ही हम कैलकुलेट कर लेते हैं डेल्टा TF फॉर X, अननोन सब्सटेंस X, उसका मान लेते हैं लेट M बी इट्स मोलर मास, जो हमें निकालना है। तो इसका डेल्टा TF क्या होगा, इसका डेल्टा TF होगा अगेन KF इनटू इसका अमाउंट कितना था 42.75, सो 42.75 अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स, अपॉन 100 ग्राम सॉल्वेंट है,
इंटू 1000, राइट। सो ये आ जाएगा KF इंटू 427.5 अपॉन m। नाउ यहाँ से अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोलूं और इसको इक्वेशन 2 बोलूं, 1 इज इक्वल टू 2, देयरफॉर KF इंटू 1.25 इज इक्वल टू KF इंटू 427.5 अपॉन m। KF से KF कैंसल आउट हो गया, m आ गया आपका 427.5 अपॉन, सॉरी मैंने 1.25 को कैंसिल आउट कर दिया यहाँ से, KF से KF हो गया अपॉन 1.25, ये आएगा अपॉन कैलकुलेशन 342। मोलर मास बोला है तो आप लिखेंगे 342 ग्राम पर मोल, राइट। सो ऐसे करके आपको अलग वे से भी आपको मोलर मास निकालना आ सकता है, बट ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा समझने वाला या कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको समझना है कि अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी अगर फ्रीजिंग पॉइंट सेम है दोनों सोल्यूशन का और सॉल्वेंट दोनों में एक है, वाटर है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी सेम होगा। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। प्योर सॉल्वेंट A has freezing point 16.5 degree Celsius. On dissolving 0.4 gram of B in 200 gram of A, the solution freezes at 16.4 degree Celsius. And on dissolving 2.254 gram of C in 100 gram of A, the solution freezes at 16.0 degree Celsius. If the molar mass of B is 74 gram per mole, what is the molar mass of C? पहले समझते हैं हमें दिया क्या क्या, हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है। एक तो A है हमारा, A है हमारा सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, राइट। हमें ये दिया, तीन चीजें दिया हमें A B C। सॉल्वेंट A जो है इसका फ्रीजिंग पॉइंट दिया है T, जिसको हम T0 या T0 बोलते हैं, ये दिया है हमें 16.5 डिग्री सेल्सियस। फिर एक दूसरा कंपोनेंट है B, जो कि है हमारा सोल्यूट B, जिसका वेट लिया है 0.4 ग्राम 200 ग्राम ऑफ A में। सो इस केस में वेट ऑफ B इज इक्वल टू 0.4 ग्राम इन व्हाट अमाउंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट A विच इज इक्वल टू 200 ग्राम। अब जो ये वाला सोल्यूशन है ये फ्रीज हो रहा है 16.4 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब 16.5 से कम होकर 16.4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अभी और क्या बोला है, ऑन डिसॉल्विंग 2.24 ग्राम ऑफ सी इन 100 ग्राम ऑफ ए। अगर एक और कंपोनेंट सी है, ये भी एक सोल्यूट है, अगर इसका 2.24 ग्राम डिसॉल्व करते हैं 100 ग्राम ऑफ ए में, मतलब इस केस में वेट ऑफ सी जो सोल्यूट है वो है 2.25 ग्राम। इसको डिसॉल्व किया कितने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, वेट ऑफ सॉल्वेंट A इज इक्वल टू 100 ग्राम में, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट आया सॉल्यूशन का दैट इज 16 डिग्री सेल्सियस। हमें B का मोलर मास दिया है, हमें C का मोलर मास का है निकालने के लिए, ठीक है। सो बेसिकली अगर मुझे B का मोलर मास पता है, मेरे पास KF की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मुझे अगर C का मोलर मास निकालना है, मैं एग्जैक्टली पहले वाली इक्वेशन से ही निकालूंगी जैसे मैं निकालती थी, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी, KF इंटू मोलालिटी, मैं यही चीज यूज करूंगी। KF मेरे पास है नहीं, डेल्टा TF ऑब्वियसली है अगर मैं बात करूं फॉर C। सो डेल्टा TF इज व्हाट, डेल्टा TF इज 16.5 minus 16 is equal to KF into मोलालिटी। लेकिन KF नहीं है मेरे पास यहाँ पे, हाँ मोलालिटी में निकाल सकती हूँ, मान लेती हूँ लेट मोलर मास ऑफ CBM, तो यहां से मोलालिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C दैट इज 2.24 अपॉन कैपिटल M डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, राइट। ये हो जाएगी दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगी हमारी यहां से यस ये 22.4 अपॉन M, राइट। सो यानी कि यहां से ये आ गया 0.5
इन इज इक्वल टू के एफ इंटू 22.4 अपॉन एम। मेरे पास ये चीज आ गई, राइट। लेकिन मुझे अगर इसका मोलर मास चाहिए तो मुझे के एफ पता होना चाहिए। मैं किसी भी इक्वेशन में दो चीजें तो निकाल नहीं सकती अननोन। मुझे किसी भी इक्वेशन में एक ही चीज निकालना मतलब पॉसिबल है अगर मैं बाकी सारे निकाल पाऊं तो, मुझे सारे पता हो तो। लेकिन मुझे ना तो यहाँ पे के एफ पता है, तो मैं मोलर मास कैसे निकालूंगी? सो के एफ हम निकालेंगे बी से। जो मोलर एलिवेशन सॉरी डिप्रेशन कांस्टेंट है वो बी से आएगा। और वो क्यों बी से आएगा? क्योंकि बी में भी सॉल्वेंट ए यूज किया है, सी में भी सॉल्वेंट ए यूज किया है। सो बेसिकली अगर दो सॉल्यूशन में सेम सॉल्वेंट यूज किया है तो उनका सेम सॉल्वेंट का मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट दैट इज के एफ तो सेम ही होगा। सो जो बी का वैल्यू होगी बी के लिए के एफ की वही वैल्यू होगी सी के लिए के एफ की। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट के एफ of solvent A has to be calculated. How? It has to be calculated from solution of B solute. B के solution से B की क्या क्या इंफॉर्मेशन है? B की, क्योंकि हमें B का मोलर मास दिया है, B की इंफॉर्मेशन ये है हमारे पास 0.4 ग्राम in 200 gram, 0.4 gram of B in 200 gram of A. B का मोलर मास कितना है? 74। मोलर मास ऑफ B गिवन है दैट इज 74। ठीक है, तो अगर मैं इसका लगाऊं डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, तो डेल्टा टी एफ क्या है? टी नॉट माइनस टी एस इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी दैट इज 0.4 अपॉन इट्स मोलर मास अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 200 इंटू 1000। अब ये टी नॉट और टी एस क्या है? ये गिवन है। प्योर वाटर का कितना है? 16, प्योर सॉल्वेंट का, नॉट वाटर, कोई भी सॉल्वेंट ए का 16.5 एंड वो फ्रीज कितने पे हो रहा है? 16.4 पे। so that is 16.5 minus 16.4 दिस इज इक्वल टू के एफ इंटू ये आ जाएगा, ये जो भी वैल्यू है कैलकुलेट करके आ जाएगी 0.027। सो 0.1 इज इक्वल टू के एफ इंटू 0.027। यहां से के एफ आ जाएगा, दिस इंप्लाइज के एफ विल बी इक्वल टू 3.703। अब के एफ आ गया तो हमने जो पीछे निकाली थी इक्वेशन ये सी के लिए, फॉर सी हमने क्या निकाला था? सो फॉर सी वी हैव 0.5, we have 0.5 इज इक्वल टू, ये जो पिछली इक्वेशन थी के एफ इंटू 22.4 अपॉन एम। सो के एफ की वैल्यू कितनी है? 3.703 इंटू 22.4 अपॉन एम 0.5। दिस इंप्लाइज मोलर मास इज इक्वल टू 3.703 इंटू 22.4 अपॉन 0.5 जो आ जाएगा कैलकुलेट करके 165.8। इन्होंने अब मोलर मास बोला है, यस मोलर मास बोला है, तो हम आंसर में लिखेंगे ग्राम पर मोल। सो इस तरह से हम एक इक्वेशन से हमने मीन एक वैल्यू को एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन की वैल्यू यूज करके हमने पहले के एफ निकाला क्योंकि सॉल्वेंट सेम था, तो वही के एफ जो है वो यहाँ यूज हो जाएगा नेक्स्ट वाले में। ठीक है, सो के एफ विल बी सेम बिकॉज दोनों में सॉल्वेंट कॉमन था। चलिए अगला न्यूमेरिकल करते हैं। एन एक्वस सॉल्यूशन फ्रीजेज एट -2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हमें सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया है -2 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन? ओके, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालना है, और हमें इसमें के एफ दिया है, के बी दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर दिया है एट 298 केल्विन। तो इसमें कई चीजें निकालनी है हमें। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? इसमें हमें निकालनी है मोलालिटी।
मोलैलिटी। यहाँ पे हमें TS दिया है यानी कि सॉल्यूशन का, और एक्वा सॉल्यूशन है तो प्योर वाटर का कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस प्योर वाटर का। तो यहाँ से डेल्टा TF क्या आ गया 0, सॉरी ये माइनस है नहीं गया, 0 माइनस 0.2, 0 माइनस 0.2 ये आ गया, दैट इज इक्वल टू 0.2 एंड डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी। सो मोलैलिटी आ गई डेल्टा TF अपॉन KF। KF हमें गिवन है, KF इज गिवन दैट इज 1.86। तो यहाँ से मोलैलिटी आ गई 0.1075। निकाल ली हमने मोलैलिटी। सेकंड क्या निकालना है हमें, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। वेरी सिंपल, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी कि हमें डेल्टा TB निकालना है। डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। KB गिवन है 0.512 इंटू मोलैलिटी हमने निकाल ली है 0.1075, ये आ जाएगा आपका 0.055 डिग्रीज। तो ये आ गया हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दिया है 23.756। नाउ यहां से अगर मैं बात करूं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, एक सेकेंड यहां पे लिख लीजिए, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है आपको पता है वेपर प्रेशर जो होता है नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट का वो प्योर सॉल्वेंट से कम होता है। सो दैट इज P0 माइनस PS। ये अगर आपने अपने इस पे न्यूमेरिकल किए हैं तो ये तो अभी तक आपको अच्छे से क्लियर होगा, बिकॉज ये न्यूमेरिकल तो बहुत पहले आ जाते हैं। फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो हमें ये निकालना है। लेकिन हमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, हमें प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर गिवन है दैट इज P0 गिवन है विच इज इक्वल टू 23.756 mm, राइट। हमें क्या गिवन है, हमें हमारे पास अब हमें एक चीज पता है, relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solute. Relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solute. ये हमने इस पे भी न्यूमेरिकल पहले किए हुए हैं। सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब P0 माइनस PS अपॉन P0, राइट, इज इक्वल टू, मैं कई बार P0 को नीचे, 0 को नीचे लिख देती हूँ, कई बार मैं ऊपर लिख देती हूँ, ये इतना मैटर नहीं करता। आपको पता होना चाहिए कि आप जो सिंबल यूज कर रहे हो वो किसके लिए यूज कर रहे हो। दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, राइट। हमें P0 पता, अगर हम PS निकालेंगे तो P0 माइनस PS हो जाएगा हमारा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नाउ व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान से देखो हमारे पास है मोलैलिटी M, दैट इज इक्वल टू 0.1075। सो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि 0.1075 moles of solute are present in 1000 gram of solvent. सॉल्वेंट क्या है हमारा, वाटर, ठीक है। सो दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या हो गया 1000 ग्राम इसका अमाउंट है अपॉन इसका मोलर मास 18, दैट इज 55.5, ठीक है। सो यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो हमारे पास है ऊपर 0.1075, ये हमारे पास है अपॉन 0.1075 प्लस
55.5। सो यहाँ से हमारी ये वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेट करके 0.00193। ये आ गया हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, जो कि इसके बराबर है, यानी कि इस इक्वेशन में पुट करिए ये वैल्यू, ये जो हमने निकाला है मोल फ्रैक्शन x, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1। तो यहां से, और पी नॉट की वैल्यू भी करी सब्स्टिट्यूट, 23.756 माइनस दिस अपॉन 23.756 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितना आया हमारा, आया है 0.00193, ये आया है। यहां से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो पीएस आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे सोल्यूशन का आ जाएगा हमारा 23.710 mm। सॉल्यूशन का आ गया, सॉल्वेंट का पता है। सो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा पी नॉट माइनस पी एस, दैट इज इक्वल टू, पी नॉट कितना था 23.756 माइनस 23.710, so this is equal to 0.046 mm, 0.046 mm is the lowering of vapor pressure, और यही हमें निकालना था, lowering of vapor pressure। ठीक है, ये मैं यहाँ पे स्टार बना देती हूँ ताकि ये समझ आ जाए कि इसको मैंने कहाँ सॉल्व किया है। ये यहाँ से मैंने इसको यहाँ लेके गई हूँ। सो यहाँ से हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया और हमने वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन निकाल लिया, जिससे आ गया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, चलो अगला न्यूमेरिकल करते हैं। 68.4 ग्राम ऑफ शुगर इज डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। What is the freezing point, boiling point, vapor pressure at 20 डिग्री सेल्सियस, osmotic pressure, density of solution given है 1.024 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, प्योर वाटर का दिया है 17.633 मिलीमीटर, के एफ एंड के बी की वैल्यूज दी हैं। बहुत सिंपल है, फॉर्मूलाज में पुट करते जाओ और निकालते जाओ। देखो अगर आपको फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, आपको पहले मोलालिटी पता होनी चाहिए सोल्यूशन की। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज 68.4 ग्राम ऑफ शुगर अपॉन इसका मोलर मास, और ये है कितने 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, तो ये आ गई इसकी मोलालिटी 0.2 मोलर। हमें क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट के लिए हम क्या लगाएंगे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। नाउ डेल्टा टी एफ इज व्हाट, सोल्यूशन प्योर वाटर का माइनस सोल्यूशन का, और हमें किसका निकालना है, हमें सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। के एफ कितना है 1.8, के एफ कितना गिवन है, के एफ है 1.873, मोलालिटी कितनी है 0.2 निकाली है। जीरो, ये वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस। सो 0 माइनस टी एस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 0.3746, यहाँ से फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन आ गया माइनस 0.3746 डिग्री सेल्सियस, सॉल्वेंट से कम हो गया। ठीक है, सेकंड क्या बोला है, बॉइलिंग पॉइंट, एग्जैक्टली ऐसे ही जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाली इक्वेशन है, दैट इज डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। डेल्टा टी बी क्या होता है, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस प्योर सॉल्वेंट का, इज इक्वल टू के बी कितना गिवन है, के बी है 0.516, मोलालिटी कितनी है 0.2, सो दिस इज इक्वल टू 0.1032। प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस, सो टी एस माइनस 100, सो फिर सोल्यूशन का आ गया बॉइलिंग पॉइंट 0.1032 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्या बोला है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। अगेन सेम जैसे मैंने प्रीवियस में किया, इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में किया था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वो निकालना है सोल्यूशन, यानी कि पी एस निकालना है। P not given है, that is 17.633 mm,
ठीक है, हमें पता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दैट इज पी नॉट minus PS upon P naught is equal to mole fraction of solute, and mole fraction of solute is equal to number of moles of solute upon number of moles of solute प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो कि यहाँ पे वाटर है, और मोलालिटी जो हमने जो अभी निकाली थी पीछे, हमारे पास m है, दैट इज इक्वल टू 0.2, सो दैट इज 0.2 मोल्स इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो हमारे पास सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स तो हैं, तो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स क्या आ गए 1000 अपॉन 18, जैसे एग्जैक्टली पिछले न्यूमेरिकल में किया, दैट इज 55.5। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आ गए, तो बस यहाँ वैल्यू पुट कीजिए जैसे पीछे किया था 17.633 माइनस PS अपॉन 17.633 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज 0.2 अपॉन 0.2 प्लस 55.5। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा सॉल्व करने पे PS इज इक्वल टू 17.569। तो ये हो गया आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद दैट इज ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। फोर्थ निकालना है आपको ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर P इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू R इंटू T। अब आपको क्या निकालनी है मोलैरिटी, C इज व्हाट मोलैरिटी। मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालनी पड़ेगी पहले। नंबर ऑफ मोल्स तो हैं आपके पास, n तो है आपके पास 0.2, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन नहीं है। आपके पास सोल्यूट का मास है, मास ऑफ सोल्यूट दैट इज इक्वल टू 68.4 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट है दैट इज इक्वल टू 1000 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन ऐड करके आ गया दोनों का, दैट इज इक्वल टू 1068.4 ग्राम। डेंसिटी गिवन है आपको 1.024 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम आ गई 1068.4 अपॉन 1.024, ये आ जाएगी आपकी 1043.335 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गई आपकी सॉल्यूशन की वॉल्यूम। बस यहाँ से अब आपकी मोलैरिटी आ जाएगी। मोलैरिटी क्या हो गई, C इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर सोल्यूशन की वॉल्यूम 1043.35 इंटू 1000, दिस इज इक्वल टू 0.916। P is equal to C, that is 0.916 into R, that is 0.0821 into टेम्परेचर कितना है 20, तो 273 प्लस 20 भी केल्विन में लेना है, तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 4.6180 m। सो न्यूमेरिकल बहुत इजी है, ठीक है। सो वॉल्यूम निकालने के बाद, मतलब मैं अगेन यहाँ पे स्टार बना देती हूँ, उसके बाद हमने वॉल्यूम निकाल के हमने मोलैरिटी निकाल ली, और उसके बाद हमने ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल लिया सॉल्यूशन का। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। An aqueous solution contains 5% by weight of urea and 10% by weight of glucose. What will be its freezing point? तो अभी आपके पास एक वाटर का सोल्यूशन है, मतलब एक एक्वस सोल्यूशन है जिसमें 5% यूरिया है बाय वेट एंड 10% बाय वेट ग्लूकोज है। आपको इस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। अब क्या अलग है इसमें बाकी सोल्यूशंस के कंपैरेटिवली जो हमने अभी तक किए हैं? बाकी सभी सोल्यूशंस में हमने एक ही तरह का सोल्यूट किया था कि एक पर्टिकुलर सोल्यूशन में एक ही तरह का सोल्यूट होता है, तो हमने उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या किया, उस पर्टिकुलर सोल्यूशन की मोलैरिटी निकाल ली थी। KF गिवन था, वाटर का प्योर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है, वहां से हमने सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकाल लिया था। इसमें भी एग्जैक्टली सिमिलर होगा, बट इसमें क्योंकि दो सोल्यूट हैं, तो दोनों सोल्यूट की मोलैरिटी ऐड होगी और वो इक्वेशन में यूज होगी। मतलब आप जो यहाँ पे यूज करेंगे डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M।
इसमें जो m होगा दैट विल बी मोलैलिटी ऑफ यूरिया प्लस मोलैलिटी ऑफ दूसरा क्या है, ग्लूकोज। बाकी सब सेम है। डेल्टा टीएफ में डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू वाटर का माइनस इसका, के एफ हमें गिवन है, सो आप मोलैलिटी निकाल लीजिए। फर्स्ट क्या निकालते हैं, चलिए मोलैलिटी ऑफ यूरिया निकालते हैं, मोलैलिटी ऑफ यूरिया। सॉल्यूशन का मास पता होना चाहिए, सॉल्यूशन क्या है हमारा 5%, दैट मीन्स 5 ग्राम ऑफ यूरिया in 100 gram of solution, right? So therefore solvent कितना हो गया, 100 minus 5 that is equal to 95 ग्राम। ये हमारा आ गया 95 ग्राम, ठीक है। ये हमारा आ गया सॉल्वेंट का मास। यहां से हम मोलैलिटी ऑफ यूरिया मान लेते हैं m1 है, m1 चलो m ही मान लेते हैं, m यूरिया आ गया हमारा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज 5/60 अपॉन 95 यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट, ये आपका कैलकुलेट करके आएगा 0.980। अभी हम क्या करेंगे, मोलैलिटी ऑफ ग्लूकोज निकालेंगे एग्जैक्टली सिमिलर वे से। मोलैलिटी ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज कितना है 10%, यानी कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से सॉल्वेंट कितना हो गया, सॉल्वेंट हो गया हमारा यहां से 90 ग्राम, ठीक है। तो ओके हाँ, हम इसमें एक और काम करेंगे, हम इसमें इसको ऐसे करने की बजाय हम इसको ऐसे करेंगे, वो इजियर रहेगा। आप एक काम कीजिए, इसमें आई टेल यू, इसको मैं दोबारा से समझाती हूँ। इसमें एक इस ऐसे करने की बजाय आई हैव अ इजियर वे टू कैलकुलेट द मोलैलिटी। देखिए यहाँ पे हमारे पास है 2 सोल्यूट, तो दोनों सोल्यूट जो है ऐड होके सॉल्यूशन तो 100% ही है, क्योंकि हमें परसेंटेज बाय वेट दिया है। मतलब 5 ग्राम ऑफ यूरिया इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। एंड जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। ये ठीक है कि मोलैलिटी ऑफ यूरिया प्लस मोलैलिटी ऑफ ग्लूकोज ही होगा टोटल मोलैलिटी, बट 5% सोल्यूशन का मतलब 5 ग्राम ऑफ यूरिया इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, एंड 10% का मतलब 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप टोटल वेट ऑफ सोल्यूट बताइए कितना है, टोटल अमाउंट ऑफ सोल्यूट that is equal to 15 ग्राम। सो therefore amount of solvent यहाँ पे जो निकलेगा वो हम निकालेंगे 100 माइनस 15 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 85 ग्राम। आप इसको यूज करेंगे सॉल्वेंट को दोनों केस में, मतलब जब आप मोलैलिटी ऑफ यूरिया निकालेंगे तब भी आप यही मास यूज करेंगे सॉल्वेंट का, जब मोलैलिटी ऑफ ग्लूकोज निकालेंगे तब भी आप सॉल्वेंट का मास यही यूज करेंगे। मतलब मोलैलिटी ऑफ यूरिया will be equal to number of moles of urea that is 5 upon इसका मोलर मास है 60 अपॉन सॉल्वेंट का वेट 85 इंटू 1000, और ये आएगा कैलकुलेट करके 0.980। एंड अब जब आप निकालेंगे मोलैलिटी ऑफ ग्लूकोज, तो वो आएगी 10 ग्राम ऑफ यूरिया अपॉन इसका मोलर मास अपॉन सॉल्वेंट का वेट तो 85 ही रहेगा इसमें भी, इनटू 1000, और ये आएगा कैलकुलेट करके 0.653। ये हुई आपकी मोलैलिटी ऑफ यूरिया, ये हुई मोलैलिटी ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पे हमारी जो मोलैलिटी आ गई, सो मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन जो हुई हमारी that is equal to sum of 0.980 plus 0.653, ये होगी आपकी मोलैलिटी।
राइट, टोटल। सो यहाँ से डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। डेल्टा टी एफ हो गया 0 डिग्री सेल्सियस माइनस सोल्यूशन, दिस इज 1.86 इंटू 0.980 प्लस 0.653, ये आएगा, इसको कैलकुलेट करके ये आएगा 3 ये आ रहा है 3.03। सो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट है वो हो गया -3.03 डिग्री सेल्सियस। सो इस केस में हम सॉल्वेंट का मास सोल्यूट, दोनों सोल्यूट को ऐड करके 100 ग्राम, ये दोनों केस में सोल्यूशन तो 5% बाय वेट है, वो 5% बाय वेट है और 10% बाय वेट है। सो दोनों ही 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में है, तो हम इसीलिए सॉल्वेंट का मास दोनों सोल्यूट को ऐड करके सोल्यूशन के 100 ग्राम में से माइनस करके निकालेंगे और उसको हम यहाँ लेंगे मोलालिटी निकालने में 85 एंड 85। एंड फिर जब मोलालिटी निकाल ली तो ऐड करके हम सिंपल अपनी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाली इक्वेशन लगा के हम अपना सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकाल लेंगे। On dissolving, next numerical says on dissolving 0.25 gram of a non-volatile substance in 30 centimeter cube of benzene whose density is given, its freezing point decreases by 0.40 डिग्री सेल्सियस। मतलब आपको डेल्टा TF दिया है, एक सोल्यूशन है जो बनाया गया है आपका किसमें, बेंजीन में, एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल के बेंजीन की वॉल्यूम दी है, आपको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस निकालना है। तो लगेगा तो इसमें भी वही इक्वेशन डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। आई थिंक इन्होंने यहाँ पे जो है के एफ मिस कर दिया है, इस न्यूमेरिकल में के एफ की वैल्यू गिवन होनी चाहिए एंड के एफ की वैल्यू इस न्यूमेरिकल के लिए होगी 5.12। आप ये यूज कर लीजिए, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, आपको के एफ पता है, आपको डेल्टा टी एफ पता है, आपको मोलर मास ऑफ दी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट निकालना है। सो लेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस और सोल्यूट इक्वल टू एम। अब ये है कितना, 0.25 ग्राम है इन 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ बेंजीन। सो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, नंबर ऑफ मोल्स हो गए 0.25 अपॉन कैपिटल एम। लेकिन मोलालिटी हमें चाहिए, अगर एम चाहिए तो हमें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ बेंजीन सॉल्वेंट, इसकी वॉल्यूम है 30 सेंटीमीटर क्यूब, इसकी डेंसिटी गिवन है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से वॉल्यूम इजीली आ जाएगी, दैट इज 30 इंटू 0.8 दैट इज इक्वल टू 2.4, नॉट 2.4, ये आएगा आपका 24 ग्राम। अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो सीधा यहाँ पे इक्वेशन में पुट करिए 0.40 डेल्टा टी एफ, के एफ 5.12, मोलालिटी के लिए 0.25 अपॉन एम अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, और यहाँ से आप कैपिटल एम निकालेंगे, ये आ जाएगा 133.32 यू। मॉलिक्यूलर वेट बोला है तो हम यू में एक्सप्रेस करेंगे, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। सो ये कैलकुलेट करके मास आ जाएगा ऑन कैलकुलेशन, आपका जो मोलर मास आएगा वही आएगा। इसमें भी कुछ डिफरेंट नहीं था, सिर्फ इसमें सॉल्वेंट की वेट की जगह सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया था, डेंसिटी दी थी, उससे आपको सॉल्वेंट का वेट निकालना था, ठीक है, और आपको मोलालिटी इक्वेशन में यूज करना था। सो नेक्स्ट इज द टेम्परेचर एट अ हिल स्टेशन इज -10 डिग्री सेल्सियस, विच इज बी सुटेबल टू ऐड इथाइलिन ग्लाइकोल, जो मैंने पहले भी बताया था, इथाइलिन ग्लाइकोल CH2OH ये इन टू वाटर इन द रेडिएटर सो दैट सोल्यूशन इज 30% बाय मास। मतलब ये कह रहे क्या हम इथाइलिन ग्लाइकोल का वाटर में 30% बाय मास सोल्यूशन बनाएं, जिसके बनाने से जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है वो लो हो जाए,
-10 डिग्री सेल्सियस से लो हो जाए ताकि वाटर फ्रीज ना करे, क्योंकि हिल स्टेशन पे टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस। तो इथाइलिन ग्लाइकोल को रेडिएटर में के पानी में डालने का मतलब ही यही है कि हमें सॉल्यूशन ऐसा बनाना है जिससे हमारा फ्रीजिंग पॉइंट जो आए वो -10 से कम आए। तो क्या 30% सॉल्यूशन से ऐसा पॉसिबल है? अब ऐसा पॉसिबल तो तभी है अगर हम 30% बाय मास को यूज करके हम इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए क्या करें, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकाल लें। यही इक्वेशन यूज करके, दैट इज डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, जिसमें ये होगा टी नॉट माइनस टी एस। के एफ हमें गिवन है 1.86, मोलालिटी हम निकाल लेते हैं, और टी नॉट हमें पता है, यानी कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अगर टी एस की वैल्यू -10 से कम आती है दैट मीन्स सही है 30% सोल्यूशन, और अगर नहीं है तो इसका मतलब सुटेबल नहीं है। सो 30% बाय मास का मतलब 30 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, राइट। इसका मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा 70, दिस इज इक्वल टू 70 ग्राम। तो यहां से मोलालिटी क्या आ गई, मोलालिटी आ गई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज 30 अपॉन मोलर मास विच इज 62 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। ये आएगी कैलकुलेट करके 6.912 मोलर, मोलालिटी आ गई। बस अब तो ये करना है, T नॉट माइनस टी एस इज इक्वल टू 1.86 इंटू 6.912, 0 माइनस टी एस इज इक्वल टू 12 पॉइंट आ जाएगा, ये कैलकुलेट करके 857। यहां से सोल्यूशन का टेम्परेचर आ गया -12.857 डिग्री सेल्सियस। सो यस it is possible, it is suitable, yes it will be suitable to add ethylene glycol 30% by mass। solution बनाना सही है, it will be, yes it will be suitable, right। तो अगर फ्रीजिंग पॉइंट हमारा जो है, क्योंकि हिल स्टेशन का फ्रीजिंग पॉइंट मतलब हिल स्टेशन का टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस, सो अगर वैल्यू उससे कम आ रही है तो ये सोल्यूशन फ्रीज नहीं होगा रेडिएटर्स के अंदर। तो ये 30% कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन इथाइलिन ग्लाइकोल का विल बी ओके, ठीक है। सो अभी है हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जो कि अगेन देखते हैं क्या करना है इसमें भी हमें, ये भी ओके इसमें हमें मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ दिस थिंग बेंजीन C6H6 is 4.90, then that means KF given है 4.90। सिलेनियम एग्जिस्ट एज अ पॉलीमर ऑफ द टाइप SEX, मतलब सिलेनियम जो है उस वो एक पॉलीमर है, मतलब उसके बहुत सारे एटम जुड़े हुए हैं एक साथ, वो X क्या है हमें पता नहीं है। When 3.26 gram of selenium is dissolved in 226 gram of benzene, the observed freezing point, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या बन जाता है सोल्यूशन का, जब हम 3.26 ग्राम ऑफ सिलेनियम डालते हैं जो हमारा सोल्यूट बन गया 226 ग्राम ऑफ बेंजीन में जो हमारा सॉल्वेंट है, देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन बिकम्स 0.112 डिग्री सेल्सियस, लोअर देन दैट ऑफ द प्योर बेंजीन। मतलब लोअर देन दैट तो सोल्यूशन का नहीं था, दैट मींस ये हमें इन्होंने डेल्टा टीएफ दिया है, यानी कि हमें इतना कम हो गया प्योर बेंजीन से, तो यानी कि ये 0.112 डिग्री सेल्सियस हमें डेल्टा टीएफ दिया है। डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सिलेनियम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सिलेनियम निकालने के लिए हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कहां से आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालने से। हमें एटॉमिक मास सिलेनियम का दिख गिवन है, ठीक है 78.8 ग्राम पर मोल या 78.8 एटॉमिक मास यूनिट यू। तो अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकाल ले सिलेनियम का तो हम वहां से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। मैंने ऐसे न्यूमेरिकल पहले भी कराए हैं सल्फर का केस लेके। तो अभी क्या करते हैं, हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं सिलेनियम का। सो लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सिलेनियम, जो कि पॉलीमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेम इक्वेशन डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू
KF इंटू एम लगानी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे एम क्या हो गया, डेल्टा TF क्या है 0.112, KF क्या है 4.90, एम क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिलेनियम, जो क्या आएंगे एम क्या होगा, पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिलेनियम निकालिए, दैट विल बी इक्वल टू कितना लिया है ये 3.26 ग्राम अपॉन इसका मान लेते हैं एम इसका मोलर मास है। सो दिस इज इक्वल टू मोलालिटी क्या हो जाएगी, मोलालिटी हो जाएगी आपकी 3.26 अपॉन मोलर मास ऑफ सिलेनियम अपॉन अमाउंट वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। सो ये आ जाएगा 0.112 और यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा 0.0112 और ये हो जाएगा आपका 4.9 इंटू 14.42 अपॉन एम, यहाँ से एम आ जाएगा इक्वल टू कैलकुलेट करके आएगा 631.08, ये आ गया इसका मॉलिक्यूलर वेट। अब ये मॉलिक्यूलर वेट अगर आप यू लिखते हैं तो ये बन जाएगा आपका मॉलिक्यूलर वेट। सो बेसिकली molecular weight of selenium कितना आ गया, ये आ गया 631.08 एंड एटॉमिक वेट हमें गिवन है, एटॉमिक वेट ऑफ सिलेनियम इज 78.8। तो मैं क्या कर लेती हूँ इसको यू लिख लेती हूँ, दोनों का एटॉमिक मास यूनिट कर लेती हूँ, क्योंकि ग्राम पर मोल में होगा तो वो एक मोल का होगा, यू लगा दूंगी इसी वैल्यू के आगे तो वो बन जाएगा एटॉमिक मास, आई मीन एक एटम का बन जाएगा या एक मॉलिक्यूल का बन जाएगा। सो इफ 78.8 U is the weight of one atom of selenium, 631.08 U is the weight of 1 by 78.8 into 631.08, this is equal to 8. That means ये 8 atoms का mass है, तो therefore molecular formula will be Se8, ये हो जाएगा इसका molecular formula. So this was all about numerical on depression in freezing point, the colligative property, last colligative property, that is depression in freezing point, right? तो ये हमने काफी प्रैक्टिस कर लिए हैं एंड आई थिंक अच्छे से आपको क्लैरिटी आ गई होगी ऑन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।